Gadkari, Honorable Minister for Road Transport and Highways. नहीं जी म्यूट अच्छा Government of India. Shri Vijay Kumar Singh, Honorable Minister of State for Road Transport and Highways, Government of India, and Shri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri R.K. Mathur, Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh, Honorable CEC LAHDC Kargil, Shri Feroz Ahmed Khan Sahab, Shri Giridhar Aramane, Secretary, Ministry of Road, Transport and Highways, Government of India, Shri Umang Narola, Advisor to Honorable Lieutenant Governor Ladakh, Shri Ajit Kumar Sahu, Secretary, PWD Ladakh. On this historic occasion, I, Basirul Haq Chaudhary, District Magistrate Kargil, extend a very warm welcome to all of you on this historical occasion for inauguration of ceremonial blast marking commencement of construction of Zojila Tunnel in the UT of Ladakh and J&K by Shri Nitin Gadkari, Honorable Minister for Road Transport and Highways and Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. Honorable Sir, this is indeed a great milestone in the history of Ladakh that whole year connectivity to Ladakh to the rest of the country will be a reality. Honorable Sir, for the first time in the history of India, that over 70 years of overwhelming public demand of Ladakh region is becoming a reality. Honorable Sir, it is a fitting tribute to the people of Union Territory of Ladakh and Union Territory of J&K. Honorable Sir, the construction of Zojila Tunnel will provide all-weather safe connectivity between Ladakh and rest of the country. The all-weather safe connectivity of the road is immensely important from the strategic point of view. It shall bring about all-around economic and socio-cultural integrity of these regions which remain cut off from the rest of the country during winters due to heavy snowfall for about 6 months. Honorable Sir, this tunnel, when completed, will be a landmark achievement in the history of modern India under the leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Honorable Sir, this project will not only make the travel on Srinagar Kargil Leh section of National Highway 1 free from avalanches, but also enhance the safety of travelers and reduce the travel time from more than 3 hours to 15 minutes. Honorable Sir, this project will generate employment to the locals and also bring prosperity to the region. Honorable Sir, with these words, let me welcome you all once again. Thank you, sir. Jai Hind. Now I take this opportunity and I would like to invite Shri Feroz Ahmed Khan, Honorable CEC LAHDC Kargil, for 2 minutes to welcome and thank you to the Government of India and particularly Honorable Minister of Road, Transport and Highways. I, Feroz Ahmed Khan, Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil. Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister for Road, Highways and Transport. Shri R.K. Mathur ji, Lieutenant Governor UT Ladakh. Shri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor UT JK. Shri V.K. Singh ji, Honorable Minister of State. Dr. Jatinder Singh, Honorable Minister of State and other dignitaries. आज का दिन लद्दाख के तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। आज लद्दाख खासकर करगिल के लोगों का 70 वर्षों का मांग पूरा हो रहा है। ये टनल लद्दाख को सिर्फ मुल्क के दूसरे हिस्सों से ही नहीं मिलाएगा बल्कि यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन में भी इजाफा करेगी। इस टनल के बनने से सिर्फ लोकल को ही नहीं बल्कि हमारे फौज के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा।
इसके तामीर से खित्ता लद्दाख बिलखुसूस करगिल में विंटर गेम्स, विंटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि करगिल में इन चीजों का बहुत स्कोप है। मैं यहाँ ये बताता चलूं, खित्ता लद्दाख को ज़ांस्कार मनाली से भी जोड़ा गया है और शिंकोला पर भी एक टनल तामीर किया जा रहा है। इसी तरह पर करगिल और लेह में कुछ और रोड्स भी हैं, जैसे पानीखार पहलगाम रोड, हनु तुर्तुक रोड। इनके बनने से यहाँ के लोगों और हमारे फौज को भी फायदा होगा। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि इन रोडों पर भी नजरसानी किया जाए। आखिर में मैं करगिल के अवाम की तरफ से एक बार फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी, जनाब नितिन गडकरी जी, यूटी लद्दाख के हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी, हमारे लोकल एमपी जनाब जमिया श्री नंगल जी, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। हमें उम्मीद है ये प्रोजेक्ट अपने प्रिस्क्राइब टाइम यानी 2026 में कंप्लीट होगा। मैं आखिर में जो एजेंसी हमारे यहाँ पे आया है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स से अपील करता हूं कि वो जितना हो सके यहाँ के लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ को इस प्रोजेक्ट में प्रेफरेंस दिया जाए। तो मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं वीके राजावत, डायरेक्टर टेक्निकल, NHAIDCL हेडक्वार्टर से अब आगे का कार्यक्रम शुरुआत करता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री गिरधर अरमने जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डिग्निटरीज का वेलकम करें। नमस्कार सर। Honorable Minister for Road Transport and Highways Sri Gadkari ji, Honorable MOS for Road Transport and Highways General VK Singh ji, Honorable MOS for Donor Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh Sri Mathur ji, Honorable Lieutenant Governor of J&K Sri Sinha ji, and other dignitaries. It gives me immense pleasure to be a part of this program, which will bring development to the two union territories. At the outset, I express my gratitude to the administration of Ladakh and J&K for consistent support extended for completion of national highway projects in the two union territories. Whether it is for land acquisition, removal of encroachments, or shifting of utilities, the UT administration have shown alacrity and have facilitated completion of the projects. In fact, implementation of several important projects, such as the present one, Jojila, Srinagar Ring Road, Jammu Ring Road, have picked up pace during last several months due to proactive attitude of the local administration. Sir, we have taken up several projects to make Ladakh accessible in all seasons from various access through different agencies such as NHIDCL, BRO, State PWD, and will continue to be heavily involved in the two union territories development. Further, to open up remote areas of the two union territories and help the local community develop, we will continue to invest heavily in construction of new national highways. Sir, the current project, Jojila Tunnel, is the longest of its nature, 14.15 kilometers, along with an approach road of 18 kilometers between Jedmode and Jojila Tunnel, will provide all-weather connectivity between Srinagar and Leh on National Highway number 1. It involves construction of 14.15 kilometer long tunnel at an altitude of 3,000 meters under Jojila Pass. It involves a considerable technological challenge and logistics challenge, for which I request great support from the state administration, UT administration, so that we can complete the project in time. It will reduce the travel time by more than 3.5 hours to just 15 minutes through the tunnel. The project will be completed in 6 years. Mega Engineering, which has been awarded this project, has started mobilization and will be completed as scheduled. In fact, I am expecting them to complete even before the scheduled time. Sir, there are several new projects which are under planning stage in the two union territories. Sud Mahadev Tunnel of 8 kilometers,
Voyalu Tunnel of 10 kilometers, Kelani Bypass Tunnel of 2.4 kilometers, then two-laning of Kelani Khanabal, Jammu Akhnur Road in J&K, and in Ladakh, the new projects Lachungla and Tanglangla on Leh Manali axis, and one tunnel near Shinkunla on Padam Dapcha axis are also under planning. We propose to take up in next 2 years all these projects. DPR for Shinkunla will be made ready by November 2020, that is next month, and then we will take a decision for implementation. Sir, electromagnetic survey is under implementation for these tunnels and will be completed in due course. Sir, it gives me again immense pleasure to be part of this program, and I wish the two union territories a great success in successful completion of these projects. Thank you very much. Thank you, sir, for giving the brief outlook of the project, sir. Now, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री R.K. माथुर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना संबोधन करें. नमस्कार सर. ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गडकरी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जनरल V.K. सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, DG एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, MD NHIDCL, लद्दाख से चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लेह, हमारे MP साहब, लद्दाख से जो और अन्य लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, और सभी सज्जन मंडली, पर्टिकुलरली LG J&K श्री मनोज सिन्हा, जिन्होंने एक टर्म यूज करा है सहोदर. मैं सभी को नमस्कार करता हूं, और सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी जी को. मैंने उनको कई बार तंग करा है, 3 बार 4 बार, कि इस टनल को करना है, और हर बार उन्होंने आश्वासन दिया कि उसी बजट के अंदर, बल्कि उस बजट से कम अमाउंट में एंड विद ग्रेटर सेफ्टी हम एक टनल बनाएंगे. और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो मंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया, और आज हम इस स्थान पर हैं जहां पर कि ब्लास्टिंग का ओकेजन हमारे सामने आया है. मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, टनल का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में रखा था, मई 2018. इसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्टर आए थे जो नहीं काम कर सके. उसके बाद प्रोजेक्ट को एक रिवाइज्ड और बेहतर रूप देकर, कहीं ज्यादा बेहतर पहले से, क्योंकि अब जेड मोड़ से सुरजीला टनल तक एक कनेक्टिविटी भी प्लान कर ली गई है. सेफ्टी फीचर्स हैव इम्प्रूव्ड, एंड देयरफॉर मई 18 से अक्टूबर 2020 के बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर को हटाकर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लाना और प्रोजेक्ट पे इंप्रूवमेंट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि एज ए एक्स ब्यूरोक्रेट आई कैन अंडरस्टैंड. एंड इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री श्री गडकरी जी को. इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि लद्दाख में करे जा रहे हैं, मेनली कारगिल जंस्कार रोड जो कि एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है, शिंकुला टनल के लिए जो कि एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट है. अटल टनल के बाद शिंकुला टनल से पदम दट्टा रोड पर हमें कनेक्टिविटी मिल सकेगी. ये सारे इनिशिएटिव मुझे दिख रहा है कि एक नई यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारे अचीवमेंट हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी के एग्जिस्टेंस, यूनियन टेरिटरी को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम आएंगे. इस समय में थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री भी याद दिलाना चाहूंगा. 1948 में द कंट्री हैड लॉस्ट जुजिला टनल, कंट्री हैड लॉस्ट द्रास, कंट्री हैड लॉस्ट कारगिल. उस समय जनरल थिमैया टैंक्स लेकर इसी जुजिला टनल को उन्होंने फिर से जीता, द्रास को जीता, कारगिल को जीता. और आज मैं कहूंगा कि 48 के बाद 2020 में माननीय मंत्री गडकरी जी की मदद से
हम जोजिला को फिर से जीतने की तैयारी में हैं और इसमें हम अवश्य सफल होंगे। मैं सिर्फ 2 चीजें और कहना चाहूंगा। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के विषय में बोला है। मेरा एक सुझाव है फॉर कंसिडरेशन कि एक परमानेंट कमेटी अगर गठन करा जा सके, हेडेड बाय सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी इन लद्दाख, जिसमें कि मेगा इंजीनियरिंग, बीआरओ, सभी स्टेक होल्डर्स रहें, रेगुलरली अगर वो मीटिंग करते रहें, तो मुझे लगता है कि चाहे वो लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे मेगा इंजीनियरिंग को काम करने में जो भी प्रॉब्लम हो रही हो उसको सॉल्व करने का इशू हो, सभी इश्यूज इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगे। मेरा ये अनुरोध है कि ये सुझाव अगर आप फेवरेबली कंसिडर कर सकें तो इस टनल के बनने में और मेगा इंजीनियरिंग के काम में बहुत मदद मिलेगी। मुझे जानकारी है कि बीआरओ जोजिला टनल के बाद कई सारे काम और अलाइनमेंट कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कुछ ब्रिजेस का हो रहा है, क्रैश बैरियर्स लगा रहे हैं। तो जोजिला के बाद का जो काम है बीआरओ उसको सफलता से और जल्दी कर सके ताकि टनल के साथ साथ ये काम भी टाइमली पूरा हो जाए, उसमें भी मुझे लगता है कि इस कमेटी से काफी मदद मिलेगी। लास्ट एक अनुरोध में हमारे सहोदर जनरल मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से करना चाहूंगा कि अगले 6 साल तक जोजिला टनल नहीं होगी और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे ही काम करना है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि जोजिला टनल के ओपनिंग, क्लोजिंग और थोड़ा सा एक पीरियड होता है जब कभी बंद होती है कभी खुलती है, इस दौरान में उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जरूरी होता है जो कि ट्रेडिशनली डिविजनल कमिश्नर का कश्मीर और डीसी गंडरवाल करते आए हैं। मेरा ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, अगर वो एक जॉइंट कमेटी कर दें जिसमें कि यूटी ऑफ जे&के एंड यूटी ऑफ लद्दाख मिलकर ये सारे डिसीजन लें, तो मुझे लगता है कि ये इस सड़क पर और जोजिला को क्रॉस करने का काम ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा स्मूथली हो सकेगा। आखिर में मैं फिर से माननीय मंत्री गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पर्सनली आकर भी आपको धन्यवाद दूंगा कि इस महान काम को करने के लिए आपने एक इतना स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया और इसको आज ये हमें दिन देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। सर आपका जो सुझाव है जिसमें सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनाने का वो सुझाव स्वागत योग्य है सर, और जरूर उसके सहयोग से ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से काम करेगा और जल्दी हम कंप्लीट कर पाएंगे सर। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभा को संबोधित करें। भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान आर.के. माथुर जी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और सभी अधिकारी, मेरे साथ उपस्थित मेरे चीफ सेक्रेटरी, लद्दाख के माननीय सांसद, सभी सम्मानित महानुभाव, आज मैं आदरणीय गडकरी जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज का दिन केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए मौका है जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। मुझे याद है 2018 में जब इसकी आधारशिला देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि जोजिला टनल इज नॉट ए मियर टनल बट ए मॉडर्न डे मार्वल। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था
इस रीजन का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए हम कमिटेड हैं और उसके बन जाने से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी दोनों को बूस्ट मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि जोजिला टनल का सेरेमोनियल ब्लास्ट आज है। इसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाएगा नितिन गडकरी जी का और उनकी पूरी टीम का वो कम हो। अभी कुछ दिन पहले देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री जी ने कश्मीर में 10 ब्रिजेज का अनावरण किया था जो सामाजिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एक नई गति मिली है जो वृहद स्तर पर यूरोपियन मॉडल को रिसर्च करके इसकी प्लानिंग की गई है। यह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से एक बार फिर उनको, NHIDCL को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। जेड मोड़ और जोजिला टनल का काम अप्रोच रोड और बाकी एवलेंच प्रोटेक्शन वर्क्स के साथ NHIDCL कर रहा है। मैं उसके तकनीकी विवरण में नहीं जाना चाहता हूं कि जेड मोड़ टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जोजिला की लंबाई 14.15 किलोमीटर है। मुझे लगता है कि जेड मोड़ टनल पर करीब 52% काम पूरा हो चुका है। मुझे खुशी है और आफ्टर कंप्लीशन इन दिसंबर 2023 आई एम श्योर सोनमर्ग इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट विल रिसीव विंटर टूरिज्म। जोजिला अप्रोच रोड का काम अगले 30 महीने में और टनल का काम 72 महीने में पूरा होने की उम्मीद है, ऐसा मुझे बताया गया है। ये टनल एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल होगी जिसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। श्रीनगर, कारगिल और लेह को 12 महीने जोड़ने के लिए ये टनल मुझे लगता है केवल सुविधा नहीं देने वाली है बल्कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज की ऑलराउंड आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गठजोड़ को और भी मजबूती प्रदान करेगा। सामरिक दृष्टि से भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और श्रीनगर, कारगिल, लेह ऑल वेदर कनेक्टिविटी के अलावा जोजिला पास का जो 3.5 आवर्स का ट्रेवल टाइम है वह घटकर सिर्फ 15 मिनट हो जाएगा। इस आधुनिक टनल के अलावा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, सोनमर्ग और बालटाल के बीच 5 ब्रिज, 6 कैच डैम्स, 13 रिफ्लेक्टर डैम्स, 8 कट्स एंड कवर्स, 2 स्नो गैलरीज और 8 ब्लास्ट वॉल्स बनाए जाएंगे जो 52 स्नो एवलांच साइट से प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी थी और उसके नाते मैं समझ सकता हूं कि सेफ्टी फीचर्स का कितना ध्यान इसमें रखा गया है और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा मैनुअल फायर अलार्म की भी व्यवस्था आपने की है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया है। जोजिला टनल केवल जरूरी राशन ईंधन की आपूर्ति नहीं सुनिश्चित करेगा बल्कि दवाइयों और बाकी सामानों को भी ले जाने में हमें सुविधा होगी। पिछले साल 10 दिसंबर को जोजिला दर्रा बंद कर दिया गया था। कोरोना महामारी के बावजूद सभी सावधानी बरतकर इसे अप्रैल 2020 में ही सिर्फ जरूरी सामान ट्रक्स के लिए खोला जा सका। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब बर्फबारी होती है तो यहाँ जो काम है हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। 2-2 महीने स्नो क्लियरेंस में हमें लगते हैं। पूरा प्रशासन 24 घंटे इसको लेकर के चिंतित रहता है और एक बड़े वर्कफोर्स की जरूरत रहती है हमको और लद्दाख को भी। इस टनल के बनने के बाद मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ा भारी काम था उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। I always believe holistic development of transport infrastructure is the most important element for overall growth of a region and it brings territorial equality. I am confident throughout the year between the 2 union territories. अभी माथुर साहब ने एक बात कही ज्वाइंट कमेटी की, मुझे लगता है कि हम लोग सहोदर भाई की तरह ही हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जैसा आपका सुझाव होगा उसे निश्चित रूप से तुरंत क्रियान्वित हम लोग कर देंगे। और दूसरी बात मुझे कहनी है कि इमोशनल कनेक्ट हमारा आपका बहुत अच्छा है। आज गडकरी जी ने फिजिकल कनेक्ट उपलब्ध कराने का भी एक साधन मुहैया कराया है, फिजिकल कनेक्ट भी हमें हो जाएगा। फिर से एक बार आदरणीय नितिन गडकरी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं
थैंक यू। धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। हमारे माननीय और यशस्वी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा इसको आगे ले जाने का कार्य किया है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.एंड.के श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री राधाकृष्ण माथुर जी, हमारे सहयोगी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ पर आए हमारे मंत्रालय से गिरधर अरमाने जी सेक्रेटरी, श्री आर.के. पांडे जी स्पेशल सेक्रेटरी और DGRD, और MP NHIDCL केशव कुमार पाठक जी, लद्दाख और कारगिल से आए सभी अधिकारीगण और जम्मू और कश्मीर के सभी अधिकारीगण जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो एक बड़ा अच्छा मौका है, जबकि इतने सालों से जिस चीज की बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2013 के अंदर इसकी DPR बनी थी, उसके बाद इस पर कोशिश की गई इसको काम शुरू करने की, काम शुरू नहीं हो पाया, लोग बाग बनाने के लिए नहीं आए। 2016 के अंदर ये NHIDCL को दिया गया और इसकी बिडिंग वगैरह करने के बाद 2018 में मई के महीने में प्रधानमंत्री जी ने इसका काम शुरू करने के लिए यहाँ पर दौरा किया था, लेकिन IL&FS के आर्थिक स्थिति के कारण काम रुकना पड़ा। अब पुनः गडकरी जी के प्रयास से और काफी उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को कहा है, उसके कारण काम दोबारा शुरू हो रहा है और एक बहुत अच्छा मौका हम सबके लिए है। मैं बहुत बार श्रीनगर से कारगिल और लेह तक गया हूं, मुझे पता है कि इस रास्ते की कितनी दिक्कतें हैं। इस टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेड भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और कोऑर्डिनेशन की बात से मैं जो हमारे J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा, जो भी आप समितियां बनाए वो समितियां ऐसी हों जो जल्दी फैसला लें। कई बार ऐसा होता है कि समितियां बन जाती हैं लेकिन समितियां जल्दी फैसला नहीं लेती हैं, तो जो भी समिति हो हम ये सोचकर फैसला लें कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। और मुझे आशा है कि ये काम जो इसका एक समय दिया गया है 6 साल का, उससे पहले बनकर तैयार होगा और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मैं एक चीज और नितिन गडकरी जी से निवेदन, NHIDCL बनी है उस प्रकार अगर एक टनल के लिए, सुरंग बनाने के लिए एक एजेंसी हो तो हम उससे इसका एक्सपर्टाइज भी ले सकते हैं, और क्योंकि टनलों की बहुत जरूरत पड़ेगी। आज की टेक्नोलॉजी में जब रास्ते को छोटा करना पड़ता है तो रास्ते को सीधा ले जाते हैं, अलग अलग जगह टनल बनती है, चाहे वो रोड के लिए बने आवागमन के लिए या चाहे रेल के लिए बने। तो एक ऐसी अगर एजेंसी हो तो वो बहुत हमारे लाभदायक सिद्ध होगी। मुझे आशा है कि इसके ऊपर नितिन गडकरी जी जरूर गौर करेंगे, क्योंकि जैसा उनका स्वभाव है अच्छी चीजों के अंदर वो जल्दी आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबको इस चीज के लिए अभिवादन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर आपके सुझावों के लिए और आपके काइंड वर्ड्स के लिए। अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी स्पेस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। भारत सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज के मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता और हम सबके प्रिय
आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, इसी मंत्रालय में हमारे साथी राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड वीके सिंह जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और हमारे मित्र श्री मनोज सिन्हा जी, लद्दाख के उपराज्यपाल एवं भारत सरकार में रह चुके एक वरिष्ठ अधिकारी आर.के. माथुर साहब, जम्मू कश्मीर लद्दाख के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ए.के. साहू जी, लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बसीरुल हक चौधरी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ले, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल, वहां से हमारे लोकसभा के साथी जयमयांग जी, हमारे साथ जुड़े हुए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारीगण, भारत सरकार के अधिकारीगण और कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए वहां के जनप्रतिनिधि। सबसे पहले तो मुझे बधाई भी देनी है और आभार भी प्रकट करना है आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का। और मुझे इस शुभ दिन पर यह कहने में कोई संकोच नहीं और पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ये आज का सेरेमोनियल ब्लास्ट तभी संभव हुआ क्योंकि इस मंत्रालय का नेतृत्व आदरणीय गडकरी जी कर रहे थे। हमने उनको बड़े करीब से कई वर्षों से काम करते हुए देखा है। जब सरकार नहीं थी उस समय भी जहां सख्ती करनी हो वो सख्ती कर लेते हैं, जहां नरमी करनी हो नरमी कर लेते हैं, जहां डांटना हो डांट लेते हैं, जहां बाजू मरोड़नी हो बाजू मरोड़ लेते हैं। और यही कारण था कि जैसा अभी बताया गया, इतना लंबा चौड़ा घटनाक्रम जनरल वीके सिंह जी भी बता रहे थे कि कभी कंट्रैक्टर पीछे हट गए, कभी दूसरी दुविधाएं आई। इसका लॉन्चिंग 2018 में हुआ था, तब भी हम गडकरी जी के साथ हमरा गए थे, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेकिन आखिरकार ये सुनिश्चित करवाया गया कि आज इसका काम विधिवत तौर पर प्रारंभ हो रहा है। ये मौका ये बात कहने का भी है कि जब से इस सरकार ने पदभार संभाला है 2014 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के निरंतर प्राथमिकता के साथ योजनाएं निर्माणित की गई, नए नए कार्य प्रारंभ किए गए। हम ये आसानी से नहीं भूल सकते कि 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद इस सारे क्षेत्र में एक बड़ी भीषण बाढ़ आई थी। कश्मीर घाटी के बहुत सारे हिस्से और राजधानी नगर श्रीनगर पूरी तरह पानी में था। उस समय भी गडकरी जी वहां रहे, हमको भी उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पधारे और इतना ही नहीं, जैसे मनोज सिन्हा जी कह रहे थे कि फिजिकल कांटेक्ट के साथ साथ इमोशनल कांटेक्ट का भी ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कोई साधारण बात नहीं कि 2014 में इस सरकार की जब पहली दीपावली मनाई गई 23 अक्टूबर 2014 को, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आवास में ना मना करके कश्मीर घाटी में बाढ़ग्रस्त पीड़ितों के साथ मनाई। और आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी समाज में पहली दीपावली का क्या महत्व रहता है। पूरी की पूरी सड़कें पानी में डूब चुकी थी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आदरणीय नितिन गडकरी जी श्रीनगर से लेकर के बनिहाल तक निरीक्षण पर पहुंचे। हम भी उनके हमरा थे। ये भी नहीं पता चलता था कि सड़क पानी में कहां से डूबी है। फिर इसरो की एक टीम लाई गई, मैपिंग हुई और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि गडकरी जी ने निरंतर उसकी मॉनिटरिंग की और उसमें तवज्जो दी और बार बार भारत सरकार की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो प्राथमिकता है उसका प्रमाण दिया। संयोगवश मेरे जिम्मेवारी में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां गडकरी जी की विशेष हमारे पर दया दृष्टि भी रही, मेहरबानी भी रही और हम उनको बार बार तंग करते भी रहे। एक और पूर्वोत्तर और दूसरी ओर मेरा अपना चुनावी क्षेत्र। लगभग 200 ऐसे पुल हैं जो जम्मू कश्मीर और इस क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में बनाए गए हैं। ये बातों का आमतौर पर उल्लेख नहीं आता और मीडिया में भी नहीं कहा जाता इन बातों को। और ऐसे ऐसे पुल जो कभी निर्माणित होने की संभावना नहीं थी, मांग नहीं थी, लोगों ने छोड़ दी थी उम्मीद,
उदाहरण के तौर पर मेरे अपने ही चुनावी क्षेत्र में कीड़िया गडियाल का एक पुल है, 150 करोड़ की लागत से गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया, उसका लोकार्पण किया, मात्र 2 पंचायतों के लिए और 2000 आबादी के लिए पुल 70 वर्ष से किसी सरकार ने नहीं बनाया। लेकिन ये प्रमाणित किया गया कि ये वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाली सरकार है, जहां जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। और जिस तरह आज जोजिला के माध्यम से 3.5 घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय किया जाएगा, उस पुल के माध्यम से 1 घंटे का रास्ता केवल 5 मिनट में तय करने का कार्य, और इसलिए संभव हुआ कि गडकरी जी की हमें शफकत और उनकी पैटर्नेज हासिल थी। इसी प्रकार नाशरी का टनल, चनैनी नाशरी का टनल कई वर्षों से काम चल रहा था, उसको तीव्र गति में लाया। और इतना ही नहीं, मुझे व्यक्तिगत आभार प्रकट करना है। मैंने उनके आगे निवेदन रखा कि आज तक भारत में कोई ऐसा सरकारी स्मारक नहीं, संस्थान नहीं, रोड और टनल प्रोजेक्ट नहीं जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया हो। दिस इज एन एनोमली ऑफ द हिस्ट्री। और उन्होंने हमारे इस निवेदन को तुरंत स्वीकार करते हुए, एंड नाउ दिस इज ऑन रिकॉर्ड, द फर्स्ट एवर रोड और टनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया नेम्ड आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैपेंस टू बी इन जम्मू एंड कश्मीर, नेमली द चनैनी नाशरी टनल। ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि अक्सर हमारे ध्यान से निकल जाती हैं, उल्लेख करने वाले इसका उल्लेख करना जरूरी नहीं समझते, मीडिया वालों को इससे फुर्सत नहीं कि किसने किसका कत्ल किया। इसी प्रकार अनेकों नए नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में बनने जा रहे हैं। लखनपुर से लेकर के एक ऑल्टरनेट हाईवे छतरगला के पहाड़ को पार करके डोडा तक पहुंचेगा, उसका सर्वे का काम शुरू हो गया है। ये बार बार हम नहीं कहेंगे तो लोग भूल जाते हैं, और भुलवाने वाले भी बहुत से हैं, और अपनी पीठ स्वयं हम थपथपाए तो दूसरे तो केवल आलोचना के लिए तैयार। इसी प्रकार एक और हाईवे, ये सारा गडकरी जी के निर्देश अनुसार हो रहा है। मेरी अपनी क्षेत्र से खिलैनी, मरमत, गोहा, सुधमादेव, ये सारे दीज आर ऑल वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स। कभी किसी ने इसके ऊपर काम शुरू करने का विचार ही नहीं किया। और अभी हाल ही में जो एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, अफसोस से उसका बहुत कम जिक्र होता है, कटरा से चल करके अमृतसर होता हुआ दिल्ली पहुंचेगा। 6-7 घंटे में लोग हवाई जहाज से सफर करना बंद कर देंगे, कनेक्टिंग 2 होली सिटीज। मैं तो कहूंगा कि इस कार्यकाल में गडकरी जी के नाम से जो जो स्मारक बने हैं वो अपने आप में इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसी तरह, और मैं ये भी साथ में जोड़ दूं कि जो भी कुछ उनसे मांगा उन्होंने दिया। यहां तक कि यही कीड़िया गडियाल के पुल के लिए जब हर तीसरे दिन उनके दफ्तर पहुंच जाता तो एक दिन उन्होंने कहा कि अब ये डॉक्टर साहब आ गया, मुझे पता ही पहला शब्द बोलेगा पुल। और वाकई गडकरी जी आपकी कृपा से आज मुझे पुलों वाला सांसद कहा जाता है, लेकिन ये श्रेय आप ही ने दिलवाया। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में 40,000 करोड़ रुपए पहले मनोनीत किए गए भूपेन हजारिका पुल, जिसका नाम रखा गया, असम को अरुणाचल से कनेक्ट करता हुआ आधे घंटे में आपका घंटों का सफर तय हो रहा है। सड़कों का जाल बिछ गया। पहली बार भारत के इतिहास में रोड के लिए एक अलग एजेंसी बनाई गई, स्पेशल रोड डेवलपमेंट स्कीम। क्योंकि पूर्वोत्तर में क्या था कि जो 2 प्रदेशों के बीच की सड़कें होती थी उनको ऑर्फन रोड्स कहा जाता था। सो दिस वाज ए न्यू वोकैबुलरी इन्वेंटेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ऑर्फन रोड्स, क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं। ये प्रदेश उसको देखता, वो प्रदेश इसको देखता, और ये स्पेशल रोड डेवलपमेंट स्कीम टू फोकस प्राइमरीली ऑन दीज रोड्स, ये भी आपके सौजन्य से संभव हुआ। हालांकि हमारा पूर्वोत्तर मंत्रालय इसका संचालन और इसका कोऑर्डिनेशन करता है। और जहां तक लद्दाख का संभव प्रश्न है, क्योंकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में लंबा भाषण देने का रिवाज नहीं, अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने रोहतांग टनल का उद्घाटन किया, उसके बाद जोजिला, मैं तो ये बात जोड़ दूं, बार बार ये कहा गया ऑल वेदर कनेक्टिविटी, लद्दाख नाउ विल हैव डबल ऑल वेदर कनेक्टिविटी। एक रोहतांग के माध्यम से सीधा हिमाचल मनाली, और दूसरा जोजिला के माध्यम से जम्मू कश्मीर। और आने वाले कुछ ही वर्षों में वहां के लोग ये भूल जाएंगे कि वो भी जमाना गुजरा है जब मार्च अप्रैल के महीने में वहां आम लोगों को ये चिंता लग जाती थी कि अगले 6 महीने के लिए अन्न, अनाज, सब्जियां और फल कैसे जमा किए जाएं, क्योंकि रास्ते भी बंद हो जाएंगे, सड़कें भी बंद। वो जमाना जाता रहेगा।
और इसके अतिरिक्त जो कहा गया कि सेनाओं के लिए, अर्धसेना बलों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका महत्व बार बार दोहराया गया है। यह भी कहा गया पर्यटन के लिए इसका महत्व है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल ये कह दूं कि नॉट ओनली विल दिस टनल facilitate tourism, but a day will come when this tunnel will itself be a tourist destination. दूर दूर से लोग पर्यटक ये देखने आएंगे कि ये शाहकार कैसा है, कैसे इसकी तामीर हुई। और इसलिए हमें इस बात का फख्र भी है, गर्व भी है कि आज के इस दिन गडकरी जी ने हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बना करके, इतिहास तो उन्होंने रचा है लेकिन इतिहास के गवाह हमको बनाया। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम के उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर अब सेरेमोनियल ब्लास्ट का प्रक्रिया चालू की जाएगी। इसलिए मैं एमडी NHIDCL श्री केशव कुमार पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि इस आगे के कार्यक्रम का भी अब संचालन करें। धन्यवाद सर। मैं सभी माननीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं। प्रक्रिया सभी जो हमारे दोनों पोर्टल पे लोग मौजूद हैं, जोजिला के ईस्ट पोर्टल पे और नीलगरार के ईस्ट पोर्टल पे आज सेरेमोनियल ब्लास्ट माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। जोजिला ईस्ट पोर्टल पे हमारे GM श्री विपिन GM लेह विपिन हैं और नीलगरार के इस पोर्टल पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लद्दाख कर्नल आनंद पहल हैं। अब प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी कि पहले हम लोग यहाँ से जोजिला जाएंगे, वहां की कनेक्टिविटी देखते हुए जब जोजिला में सब ठीक रहेगा तो हम जोजिला ईस्ट पोर्टल से फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह सेरेमोनियल बटन दबाएंगे और वहां जोजिला में ईस्ट पोर्टल पे विपिन चांद जी एक्चुअल बटन को दबा के ब्लास्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग लौटेंगे वापस नीलगरार साइड में, जहां पे मैं पहले कनेक्टिविटी हम लोग चेक कर लेंगे कि कर्नल आनंद पहल हमसे जुड़े हुए हैं कि नहीं, और कनेक्टिविटी चेक करने के बाद मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दोबारा सेरेमोनियल बटन दबाएंगे और उसके बाद कर्नल आनंद पहल नीलगरार के ईस्ट पोर्टल पे ब्लास्ट लेंगे। तो अब मैं सभी माननीय उपस्थित सदस्य माननीय गणमान्य व्यक्तियों को जोजिला के ईस्ट पोर्टल की तरफ ले जाना चाहूंगा और जोजिला ईस्ट पोर्टल से हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं। विपिन। यस सर। विपिन, सब ठीक है वहां पे? सब तैयारी? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन सर, सब ठीक है। हाँ तो विपिन, अब हम माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वह सेरेमोनियल बटन दबाएंगे। आप जैसे ही माननीय मंत्री सेरेमोनियल बटन दबाते हैं, आप वहां पर भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से ब्लास्ट कीजिए। माननीय मंत्री महोदय सर, माननीय मंत्री जी सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सेरेमोनियल बटन दबाइए। विपिन बटन दबाइए, ब्लास्ट करिए। इट्स डन सर। धन्यवाद सर। अब हम लोग जोजिला का ईस्ट पोर्टल में ब्लास्ट सफलतापूर्वक करने के पश्चात वो हो गया, हाँ ये दिख रहा है सर। उसका स्क्रीन पे सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जोजिला ईस्ट पोर्टल पे हुए ब्लास्ट को देखा जाए। ब्लास्ट चूंकि ओपन सरफेस में किया गया, इसे लो कैपेसिटी का रखा गया था ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। यदि टनल के अंदर किया जाता तो हम लोग और ज्यादा बड़ी कैपेसिटी का धमाका कर सकते थे। तो यह जोजिला ईस्ट पोर्टल पे आज जो ब्लास्ट माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है, उसकी छवि स्क्रीन पर गणमान्य व्यक्ति सभी देख सकते हैं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपकी लीडरशिप में जोजिला ईस्ट पोर्टल से आज से कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों को नीलगरार साइड की, नीलगरार टनल के ईस्ट पोर्टल पे ले जाना चाहूंगा। नीलगरार के ईस्ट पोर्टल पे नेतृत्व कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नल आनंद पहल। कर्नल पहल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नीलगरार पहल,
पहल। Yes, sir. आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका स्क्रीन पे शॉट क्यों नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए जरा। कैमरा ऑन कर लीजिए। जब तक हम सब म्यूट नहीं होंगे तब तक स्क्रीन पर ब्लास्ट नहीं आएगा, तो हम सबको म्यूट होना पड़ेगा और वो करेंगे। बाकी गणमान्य व्यक्ति अपने माइक को म्यूट करवाने की व्यवस्था कर दें कृपया। कर्नल पहल आपका हम लोग करेंगे। कर्नल पहल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जरा। आपको भी स्वयं अनम्यूट करना पड़ेगा तभी होगा। ये तो मन करो। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सेरेमोनियल बटन दोबारा दबाएं और नीलग्रार के ईस्टर्न पोर्टल पे कार्यक्रम ब्लास्ट का शुरू हो। माननीय मंत्री जी का कहा, मंत्री जी को नहीं दिख रहा है। ये है ना। हाँ, धन्यवाद मंत्री जी। हाँ पहल, आप वहां ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट। सर हो गया ब्लास्ट सर। सभी सम्मानित मैं अनुरोध करूंगा कि वह स्क्रीन पर ब्लास्ट को देख सकते हैं। ब्लास्ट का इमेज जोजिला नीलगिरार के पूर्वी छोर से ये लाइव आ रहा है। इसी के साथ ये दोनों तरफ से ब्लास्ट की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए श्री राजावत अब आगे इसको ले चलें। धन्यवाद सर। मंत्री जी के कर कमलों द्वारा सेरेमोनियल ब्लास्ट दोनों पोर्टल लोकेशन जोजिला और नीलगिरार पे हो चुका है सर। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो जोजिला टनल के ऊपर बुकलेट बनाई गई है मंत्रालय द्वारा, उसका विमोचन करें। जोजिला टनल के ऊपर एक शॉर्ट एवी फिल्म बनाई गई है, कृपया उसका संचालन करें। जोजिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। ये कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास कस्बे के बीच 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में 6 से 7 महीने ये इलाका शेष भारत से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। बंद रहता है, उसके कारण हमें हर सामान जैसे कि डंप करना पड़ता है 6 महीने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को प्राथमिकता दी गई। 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से जेड मोड सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। The people in the Ladakh and Leh region for 6 months there is no access, and that is the reason that even essential commodities we cannot give them, and that is the reason that they are facing huge problem. Now because of this all season tunnel, now for the complete year all season road will be there,
and that will be a great achievement for the people of Ladakh and Leh. At the same time, our defense forces. जोजिला सुरंग एशिया की लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइट वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है हमको जोजिला पर। टनल बनेगा उस टाइम बहुत ही फायदा होगा, 12 महीना गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। जोजिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एमएसएमई श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, विशेष रूप से उपस्थित मेरे कैबिनेट के सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्ण माथुर जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जयमांग तेजसिंह नाग्याल, श्री फिरोज अहमद खान जी जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं, उनके साथ हमारे सेक्रेटरी, हमारे NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर केशव कुमार पाठक, हमारे कंसल्टेंट टनल और ब्रिजेस के लिए NIDCL में काम करते हैं श्री धर्माधिकारी, भारत सरकार के लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सब किस प्रकार से हुआ है ये भी देश को समझने की आवश्यकता है। जोजिला सुरंग मार्ग के लिए 2013 में हमारी सरकार आने के पहले कैबिनेट ने BOT मोड पर 2,240 करोड़ मंजूर किए थे यूपीए सरकार ने, पर क्योंकि इस मार्ग पर 2000 PCU ट्रैफिक था इसलिए टोल नहीं होने के कारण 4 बार टेंडर निकाला गया। 4 बार। पहला कॉल जो हुआ था 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। दूसरा कॉल 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। तीसरा कॉल अक्टूबर 2015 हमारे काल में आया, फिर भी सिंगल ही बीड आया।
और IRB को मिला था वो भी हमने तुरंत वो भी रिजेक्ट किया। फिर चौथा कॉल आया मार्च 2016 में, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया। और इसलिए ये सब स्टडी करने के बाद हमने ये अध्ययन किया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन थे, उसमें लोग ही नहीं बैठते थे और इसके कारण विदेशी कंपनियां आती तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कर सकता था। तो उस समय मैंने हमारे सेक्रेटरी को और विशेष रूप से मैं हमारे NHIDCL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री पाठक, हमारे DG IK पांडे और उस समय के हमारे सेक्रेटरी युद्धवीर मलिक भी थे, और इन सबको मैंने कहा कि हम लोग देश भर के टनल मैन्युफैक्चरर की कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्कशॉप। और एसोसिएम के सहयोग से ओबेरॉय होटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई, दिन भर का वर्कशॉप हुआ और देश भर में मेट्रो में, इरिगेशन में, हाइड्रो टनल बनाने वाले जो भी थे, रोड टनल बना, सबको बुलाया गया। और धर्माधिकारी साहब को मैंने कहा कि इसमें कम से कम 10-12 एजेंसी टेक्निकली फाइनेंशियली क्वालिफाई होनी चाहिए, ये टेक्निकल नॉर्म बदलो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, NHIDCL के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, दिन भर वर्कशॉप हुआ और उसके बाद हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स बदले, जिसमें धर्माधिकारी साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। और 5वां कॉल हमने निकाला 2016 में, और ये पूरा EPC मोड में सरकारी खर्चे से बनाने का हमने निर्णय किया और ये काम NHIDCL को दिया है। अब ये सुरंग बनाने का जो ठेका था ये केवल 4,900 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसका मेरे पास एक फाइल आई थी और फाइल इसलिए आई थी कि अब इसका आगे का खर्चा 11,000 करोड़ रुपए होगा रोड और सुरंग बनके, तो ज़्यादा के खर्चे के मान्यता देने के लिए, साइन करने के लिए फाइल मेरे पास आई थी और इसके ऊपर मैंने नकार दिया और कहा मैं साइन नहीं करता। उल्टा इसमें पैसा बचना चाहिए और इसके लिए डिटेल में जाकर हम अध्ययन करें। और आज मुझे खुशी है कि राजनीतिक नेताओं को, मंत्रियों को, सरकार को इस बारे में बदनाम किया जाता है कि वो 10 रुपए का काम 20 रुपए में करते हैं और उसमें करप्शन होता है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में 11,000 करोड़ रुपए तक गया हुआ काम 4,900 करोड़ रुपए में लाया है। और अभी हम आगे का थोड़ा बहुत खर्चा भी पकड़े तो भी 4,000 करोड़ से ज़्यादा बचत इस काम में, भारत के जनता के 4,000 करोड़ रुपए हमने बचाए है। ये मुझे बहुत खुशी की बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था हमारा 2018 को, अपॉइंटमेंट डेट 19/5/2018 को। एक बार ILFS को भी दिया था हमने काम, ये जो एक बार वो भी उनका 6,808 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया था, पर ILFS आर्थिक संकट से आया तो वो भी किया। शायद ये 6वां टेंडर है। सरकार में अगर ठीक प्रकार से इच्छा शक्ति हो, नियमों में सुधार करेंगे तो देश का भी भला हो सकता है, जनता की भला हो सकता है और जनता के पैसे, सरकार के पैसे बच सकते हैं। फिर ILFS इसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जा पाया, पर इस सब काम में हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है। और ये जो 4,000 करोड़ बचे, शायद ये आगे मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ तक बचत जाएगी, पर कंजर्वेटिव अप्रोच में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो टनल में जो पत्थर निकलेगा वही हमने रोड में यूज करके 500 करोड़ बचाया। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट कमेटी हमारे DG IK पांडे, इनकी अध्यक्षता में मैंने बनाई थी और वो कमेटी ने भी काफ़ी मेहनत की। ये जो 4,000 करोड़ बचे, इसका श्रेय केवल मंत्रालय करके मुझे और VK सिंह साहब को नहीं है। ये श्रेय हमारे उस समय के सब सेक्रेटरी, आज के सेक्रेटरी, हमारे विशेष रूप से DG, हमारे NHIDCL के सभी अधिकारीगण, रजावत से लेकर सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे MD पाठक, इन लोगों ने ये सब मेहनत की। और ये जब कमेटी गई तो कमेटी ने अध्ययन करते हुए स्विट्जरलैंड के सेंट गोथार्ड सुरंग को, टनल का अध्ययन किया। इटली और फ्रांस के बीच बनी मोंट ब्लॉक सुरंग, इसका अध्ययन किया। नॉर्वे की लायरदल सुरंग, लार्जेस्ट टनल, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया। और हमने सब नई टेक्नोलॉजी लाई, नए ये लाए, डिज़ाइन में चेंजेस भी किए। मैंने कहा हमारा देश गरीब है, हजारों करोड़ फॉरेन के कंसल्टेंट हमको दे और हम उनके इशारे पर काम करें, ऐसा नहीं होगा।
टनल में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है सेफ्टी के साथ। अभी आपने फिल्म में देखा, हमने सब प्रकार का टेक्नोलॉजी अंदर लाई है, पर वर्टिकल शाफ्ट से हमें कहा गया, तो अब वो जो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की टनल की तैयार की है, जिसका जितेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, बहुत सुंदर टनल है, पर उसके लिए एस्केप टनल बनाई गई है। अब ये एस्केप टनल बनाना हमारे देश के गरीब देशों के लिए कहाँ से होगा? हमारे पास पैसा नहीं है, हमको और ज़्यादा काम करना है। और इसलिए मैंने कहा इस प्रकार जो यूरोपियन और अमेरिका में हुआ वो काम नहीं, सेफ्टी के भी मेजर पकड़ो, पर इसमें इतना पैसा नहीं लगना चाहिए। और ये मुझे आज खुशी है कि विदेशी सुरंगों में सुरक्षा और लागत के हिसाब से सिंगल ट्यूब टनल बनाई जाती है, इसलिए जोजिला में सिंगल ट्यूब सुरंग बनाने का निर्णय हुआ। और यह भी तय किया गया कि सुरंग और अप्रोच रोड एक साथ बनाए जाए। सुरंग से करीब 33 लाख मीट्रिक टन मलबा निकालने का अनुमान है, और जिसका उपयोग अप्रोच रोड में करने से 500 करोड़ का खर्च बचेगा, यानी आम का आम गुठली का दाम। सुरंग और अप्रोच का काम 6 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। पर मैं इस समय मेधा इंजीनियरिंग के जो मालिक हैं मुझे मिलने के लिए आए थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है, और मैं दोनों डिप्टी गवर्नर साहब को ये कहूँगा कि एक मनोज सिन्हा जी के अध्यक्षता में और एक हमारे माथुर साहब के अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी को लेकर सभी प्रकार के NHI के टनल रोड को कोऑर्डिनेट करने के लिए कमेटी तुरंत बनाई जाएगी। और आप दोनों जो मीटिंग बुलाएंगे उसमें NHI DCL, NHI, भारत सरकार के मिनिस्ट्री के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, DG सब आएंगे, और आप आपके लेवल पर इसका रिव्यू करिए। ये आपका प्रोजेक्ट है, छोटी मोटी अड़चनों को आप दूर करिए। चीफ सेक्रेटरी उसमें चाहिए, केवल PWD सेक्रेटरी के आधार पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम पड़ता है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के सेक्रेटरी का काम पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों कमेटियां बनाने के बारे में हम लोग करेंगे। और आपने अगर समय समय पर फास्ट निर्णय करके दिए तो अगला हमारा लोकसभा के चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं कि उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी इस टनल का उद्घाटन भी करेंगे, और इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये कठिन नहीं है। मेरे जीवन में मुझे बहुत फ्लाईओवर्स बनाने पड़े मुंबई में, और टनल्स बनाई, हाईवेज बनाए मैंने। तो अभी 1 लाख करोड़ का हाईवे दिल्ली मुंबई का, और ये हाईवे हम लोग 3 साल में बना रहे हैं। और ये मेधा इंजीनियरिंग कंपनी बहुत अच्छी है, करीब 2-2.5 लाख करोड़ के काम उनके हाथ में है। यंग मालक है, वो मिले थे, मैंने उनको विश्वास दिया, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि रात दिन काम करके, मुझे मालूम है कि परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल है, 6 महीने ही काम हो सकता है, हेलीकॉप्टर से जाना भी मुश्किल है, अड़चने और दिक्कतों का महासागर है, कोई कमियां नहीं है। पर भारत सरकार, हमारे सभी अधिकारी, सेक्रेटरी, NHI DCL के अधिकारी, लद्दाख लेह के हमारे LG, उनकी सभी टीम, चीफ सेक्रेटरी और टीम, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हमारे LG मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम, और हम सब मिलकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। और ये काम आप कैसा भी करके बिफोर टाइम 4 साल में आप करके दो, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इस काम में अभी 4000 करोड़ की बचत हुई है। टेक्निकली सुरक्षा के लिए आवश्यक करने के ऊपर सुरंग और अप्रोच रोड का काम एक साथ बनाया जाएगा, तो उसके कारण भी सुविधा होगी और कॉस्ट भी कम होगी। सुरंग के साथ जो रोड बन रहा है वो 18.63 किलोमीटर का अप्रोच मार्ग है, और इससे झेडमोर सुरंग को भी हम जोजिला से जोड़ेंगे। ये झेडमोर सुरंग भी ILFS को मिला था, पर सरकारी सिस्टम के कारण पीछे पड़ के भी मुझे काफ़ी दिक्कतें आई। पुराना कॉन्ट्रैक्टर सस्ते में काम करने के लिए तैयार था, पर अधिकारियों ने निर्णय नहीं किया और हिम्मत नहीं दिखाई। अब 300 करोड़ ज़्यादा के उसी कॉन्ट्रैक्टर को देकर हम झक मार के काम कर रहे हैं। मैं बता रहा था कि यही मार्ग निकालो, तो अब उल्टे हमारे जेब से 400 करोड़ जाके वही टेंडर मैंने ILFS के जो इस प्रकार के रेट थे उस रेट में उससे काम करो, अपना पैसा बचेगा। पर वो हमने नियम के इसमें नहीं कर पाए, और फिर उसको हमने NHI ने अभी
नया टेंडर निकाला और वही कॉन्ट्रैक्टर आगे का काम कर रहा है, उसको 300-400 करोड़ ज़्यादा के मिले और उसका फ़ायदा हुआ। हम चाहते थे वो भी पैसा बचे, तो जोजिला के साथ साथ अब झेड़मोर भी जल्दी पूरी हो जाएगी, उसका रात दिन काम चालू है। और ये दोनों टनल के बीच में अप्रोच मार्ग बनने से और बड़ी सुविधा होगी। और जोजिला की दरी पास करने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब ये काम केवल 15 मिनट में हो जाएगा। और ये इतना अच्छा है, बीजेपी का अध्यक्ष था तब से आ रहा हूँ। लोग कहते थे 6 महीने में गैस आता है, सब्जियां आती है, दूध, बाद में 6 महीना सब बंद हो जाता है, चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं। उधर पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई है, हमारे सैनिकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण टनल थी। यही कारगिल पर पाकिस्तान घुसा हुआ था। वीके सिंह साहब ने प्रत्यक्ष रूप से इस सब बातों को अनुभव किया है और इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट थी। और लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक लाइफलाइन थी। दोनों से ये काम पूरा हुआ, उससे जनता को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब उनका जीवन अच्छा बनेगा, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे। मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, पर अभी एमएसएमई के तरफ से भी मैं दोनों एलजी को कहूँगा कि अब रोजगार निर्माण घनी है। वो जो वहाँ की स्पेशल मेंढिया है, उसकी जो ऊल तैयार होती है, उसका हमने स्पेशल यूनिट बनाया है। वहाँ के स्पेशल परिस्थिति में वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, काफ़ी कुछ लिए हैं। आज का ये कार्यक्रम नहीं है, मैं आपसे कहूँगा कि इसकी योजना लेकर आप मेरे पास आइए, ताकि मैं एमएसएमई की ओर से भी आपको पूरी मदद करूँगा। ये जो सुरंग की जो स्पीड है, वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। कैरेजवे के दोनों किनारे पर 750 मीटर के अंतराल पर इमरजेंसी लेबा है, कोई गाड़ी बंद पड़ी तो बाजू में खड़ी कर सकते हैं। मैनुअल फायर अलार्म पुश बटन पोर्टेबल अग्निशामक है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के फायर अलार्म पुश बटन और फायर अग्निशामक लगाए जाएंगे। इमरजेंसी टेलीफोन की व्यवस्था अंदर की है। सुरंग में प्रकाश व्यवस्था की है। प्रवेश पर प्रकाश व्यवस्था करेंगे, पूरी सुरंग में प्रकाश व्यवस्था करेंगे, ले बाय पर प्रकाश व्यवस्था करेंगे। सीसीटीवी के कैमरे लगाए जाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम लगाई जाएंगी और सुरंग में स्वयं चलित अग्नि जांच, फायर डिटेक्शन और हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसे स्काडा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस स्काडा प्रणाली जो है वो आईटी की है, उससे जोड़ा जाएगा। और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ यातायात नियंत्रण की प्रणाली भी होगी। जोजिला और झेड़मोर के बीच में जो अप्रोच रोड बन रहा है, जोजिला झेड़मोर के बीच 18 किलोमीटर के अप्रोच रोड में 65% स्ट्रक्चर है। 2361 मीटर के 2 टनल है। 2.35 किलोमीटर के 8 कट एंड कवर टनल बनेंगे। और जोजिला और झेड़मोर के बीच के इसमें जो लिखा है, 2 स्नो गैलरी होगी, मनाई जाएगी। और मैं एक कोशिश करूंगा, पाठक साहब को अनुरोध करूंगा कि इस समय इस टनल का उपयोग करके कहीं जगह लेकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का अच्छा सेंटर होगा, जहां पॉइंट्स होंगे, जहां बर्फ में लोग खेलेंगे, जहां एंजॉय कर सकेंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे जो स्विट्जरलैंड में जैसे है। ऐसी कोई जगह ढूंढकर आप देखिए, दोनों जगह पर जाते आते समय, जहां लोगों को सब प्रकार के रेस्टोरेंट में खाना पीना सब होगा, लोग एंजॉय करेंगे, बर्फ में घूमेंगे। तो ऐसी कोई साइट अगर मार्क करते हुए उसके साथ 5, 10, 15 एकड़ एक दोनों साइड में मिलती है, तो प्राइवेट वाले डेवलप करेंगे, जिससे वहाँ के लड़कों को रोजगार मिलेगा। ये भी आप देखिए, 2 स्नो गैलरी आपने इसमें बनाई है। ये गैलरी को जोड़कर किया जा सकता है। आप अगर स्विट्जरलैंड जाएंगे तो बहुत जगह पर ऐसी पहाड़ियों पर इतना सुंदर टूरिज्म डेवलप हुआ है। तो ये टूरिज्म का एक एस्पेक्ट से थोड़ा कंसल्टेंट अपॉइंट कर ये भी एक काम करिए। इतना पैसा हमने बचा है तो 200-400-500 करोड़ उसके लिए खर्चा करेंगे। और 2 रिक्वेस्ट मेरी पाठक साहब और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को है कि ये सब काम करते समय लद्दाख लेह के नए नौजवान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको पढ़ाओ। मुझे मालूम है कि कश्मीर के अनेक लड़कों को हमारे टनल में उन्होंने काम किया, उनको रोजगार मिला। यहाँ भी उनके लिए ये हो सकता है। क्या देखो, टूरिज्म के कारण भी उनका रोजगार विकसित होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें 2 स्नो गैलरी का और अध्ययन करके कैसे हो सकता देखिए। 4 बड़े ब्रिज, 1 छोटा ब्रिज बनने वाला है। स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन 18 बनने वाले हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये आशिया का सबसे बड़ा टनल बन रहा है।
इसके ऊपर अच्छा किताब भी तैयार करो, इसकी हिस्ट्री के लिए दो, मीडिया को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक जनसंपर्क अधिकारी बनाकर इसकी अध्ययन करके इसकी फिल्म तैयार करके हमारे आप लोग कितने मेहनत में काम करे हो, कितने अड़चनों पर आपने मात की है, कितनी समस्याओं पर मात की है, और आप इसके लिए बहुत अभिनंदन के लिए पात्र हैं। तो ये सब बातें जनता तक पहुंचाना भी हमारा काम है, और इसलिए 2380 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी 2 तरफा आवागमन वाली झेड़मोर सुरंग का भी निर्माण 2023 लिखा है, पर बीच में कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिले थे और मेरा विश्वास है कि 22 के पहले ही ये काम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उनका फिजिकल वर्क 50% हुआ है। अगर हमारे दोनों एलजी हमारे सब कामों के रिव्यू करके उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सुलझा देंगे तो मुझे नहीं लगता तो ये 21 के अंदर भी काम पूरा करेंगे ये झेड़मोर का। तो मुझे उनका इसके लिए सहयोग चाहिए। 50% काम पूरा हुआ है, 1-1.5 साल के अंदर ये 50% काम पूरा करेंगे। सुरंग से सोनमर्ग से गगनमीर के बीच बनाया जा रहा है, जो आगे जाकर जोजिला सुरंग से जुड़ जाती है। झेड़मोर सुरंग निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित हो जाएगा। मैं आपको यह कहूँगा जितेंद्र सिंह जी कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए और बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में इतना काम किया है जो पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। लद्दाख, लेह, जम्मू और कश्मीर में, और वो मैं आपके सामने आज के मौके पर पढ़ना चाहता हूँ कि हमारे एनडीए के मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही है, आने वाले 50, 60, 70 साल में जो नहीं हुआ होगा उतना काम हमें 5, 6, 7 साल में करके दिखाएंगे, और हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। यही हमारा मिशन है। जो 7 टनल हम बना रहे हैं, 7 टनल, ये छोड़ दो अभी ये जोजिला और ये जो है अपनी ये टनल जो मैंने अभी कही जिसका उल्लेख किया, ये टनल को छोड़कर 7 टनल हम नए बना रहे हैं। काजीकुंड से बनिहाल के बीच 8,450 मीटर की ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। रामबन से बनिहाल के बीच 3,000 मीटर की 6 सिंगल टनल का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। खिलानी से किश्तवाड़ के बीच 450 मीटर के सुरंग मार्ग का निर्माण जून 2022 में पूरा हो जाएगा। चेनानी से अनंतनाग के बीच सुध महादेव के पास 4.5 किलोमीटर का टनल सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकालकर इस काम का हम भूमि पूजन करेंगे। सिंथन पास पर 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 10.20 किलोमीटर के सुरंग के मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकाला जाएगा। 350 करोड़ रुपए की लागत से खिलानी बाईपास सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी ही टेंडर किया जाएगा। छतरू से अनंतनाग के बीच 5,400 करोड़ के लागत से 10 किलोमीटर का वैल्यू सुरंग मार्ग बनेगा। डीपीआर बन गया है, जल्दी टेंडर हो जाएगा। आने वाले साल में ये सब पूरे काम शुरू हो जाएंगे। ये जितेंद्र सिंह आपको और उसके साथ साथ हमारे फारूक अब्दुल्ला जी आज नहीं है, श्रीनगर के सांसद, हमारे लद्दाख लेह के सांसद को विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरे इस आश्वासन का उपयोग पार्लियामेंट में जरूरत पड़ेगी तो मेरे ऊपर प्रिविलेज करने के लिए कर सकते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं आएगी। ये 7 टनल ये इसी साल शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ सबसे बड़ा वरदान कोई होगा जम्मू कश्मीर के लिए तो दिल्ली से कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम हम लोग दिसंबर में शुरू करने का सोच रहे हैं। दिसंबर 2020 में, यानी आज का महीना है शायद 1.5 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1.5 महीने में इसका काम शुरू होगा। इसका जमीन अधिग्रहण का कार्य जोरों में चल रहा है। ये एक ही रोड 21,000 करोड़ का है और दिल्ली से कटरा की दूरी केवल 650 किलोमीटर रहेगी। और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम 2 चरणों में होगा। दिल्ली से गुरदासपुर, सिखों के हमारे 6 जितने हमारे गुरुद्वारा है अमृतसर में, सब इसके साथ आएंगे, जुड़ेंगे। और दिल्ली से गुरदासपुर और गुरदासपुर से कटरा, और ये जो 650 किलोमीटर है कटरा तक, ये मेरे अंदाज से हम कोशिश करेंगे कि 8 घंटे में दिल्ली से कटरा आप पहुँच जाएंगे और 5.5-6 घंटे में दिल्ली से अमृतसर पहुँच जाएंगे। तो यह ऐतिहासिक होगा। और आपको मैं बताता हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास रखिए
कि जब मैं मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में 9 घंटे लगते थे, तो मैंने जब कहा कि मैं ये प्रवास 2.5 घंटे में होगा तो लोगों हंसे और कुछ अखबार वालों ने मेरे ऊपर एडिटोरियल लिखे थे। पर अब दिल्ली और मुंबई 2 घंटे में हुआ। अभी दिल्ली और मेरठ का हम दिसंबर में उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राज्य मंत्री वीके सिंह साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी का रोड है। अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते हैं और आने वाले जनवरी से दिल्ली से मेरठ केवल 50 मिनट में होगा। ये काम हमने किया है। तो देश में निश्चित रूप से हमारी सरकार ने ये जो हमारा दिल्ली कटरा हाईवे इसको बहुत प्रायोरिटी दी है। इस एक्सप्रेसवे पर लंदन की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को मौसम की जानकारी मिलेंगी और यही दिल्ली कटरा हाईवे जम्मू हाईवे को भी कनेक्ट करेगा और दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले कश्मीर वाले पर्यटकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जम्मू से लेह तक का निर्माण जो कार्य है, जम्मू से जितेंद्र सिंह जी ने बताया है कि जम्मू से उधमपुर 4 लेन की सड़क हमने बनाई है, ऑलरेडी उसका उद्घाटन हुआ है। उधमपुर से रामबन तक दिसंबर 2020 तक 4 लेन सड़क बन जाएगी। इसके बीच में चेनानी नाशरी का सुरंग जो है 2017 में प्रधानमंत्री ने जो उसका उद्घाटन किया है। रामबन से बनिहाल तक 2200 करोड़ रुपए के लागत से 33 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा और श्रीनगर से बनिहाल तक 1500 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर का 4 लेन सड़क का भी निर्माण लगभग हो गया है। तो मेरा विश्वास है कि इससे दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। श्रीनगर तक दिल्ली से लेह जाना आसान होगा क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेह जाने का समय आधा हो जाएगा। अभी सड़क मार्ग से 38 घंटे लद्दाख के लिए हर मौसम में हर साल पूरे ऑल सीजन में सड़क संपर्क बना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लद्दाख लेह के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए खर्चा होती है। मेरा आदरणीय एलजी साहब, लद्दाख लेह के माथुर साहब और मनोज सिन्हा जी को प्रार्थना है कि इसमें पर्यटक, उद्योग व्यवसाय, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हनी, ऊल, इन सब बातों का विचार करते हुए इस परिस्थिति में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें जहां होती है वहां उद्योग जाते हैं, जहां उद्योग जाते हैं वहां रोजगार होता है। अब वहां IIT आई है, 5 स्टार रिसॉर्ट्स आ रहे हैं और हमने 370 हटाने के बाद विकास का दरवाजा खुल गया है। तो मेरा विश्वास है कि सड़क मार्ग से पर्यटक बढ़ेंगे और श्रीनगर के साथ लद्दाख लेह में भी पर्यटक बढ़े, ये मेरी बहुत दृढ़ इच्छा है। और जम्मू श्रीनगर लेह के बीच सामाजिक आर्थिक कार्य भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार में सुगमता आएगी और स्थानिक स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। मैं दोनों एलजी को कहूँगा कि अब अलग से आज का दिन नहीं है, पर MSME का, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स का, खादी ग्रामोद्योग का उपयोग करके विशेष रूप से मैं आप दोनों के साथ बैठकर आपको पूरी मदद देना चाहता हूँ ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आर्थिक समृद्धता भी आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे, अभी भी है, और उनके नाम से हमने ये चेनानी नाशरी टनल बनाई है। इतनी सुंदर है, ये स्टेट ऑफ आर्ट है। ये 9.2 किलोमीटर की दोहरी ट्यूब हाईवे टनल है। इसका प्रधानमंत्री जी ने 2017 में उद्घाटन किया था और 24 अक्टूबर 2019 को जितेंद्र सिंह जी उन्होंने बहुत आग्रह किया और फिर हमारे पॉलिसी बदलकर हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी दिया है। जम्मू से श्रीनगर के बीच सुरंग बनने से 3 घंटे की यात्रा अवधि में कमी आई है और टनल बनने से जम्मू से श्रीनगर की दूरी 30 किलोमीटर से कम हुई है। इस टनल के बनने से, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से 27 लाख रुपए का डीजल और पेट्रोल हर दिन बचता है और उतना प्रदूषण कम होता है। और जम्मू और श्रीनगर के बीच 365 दिन भी अब हमारा ये शुरू होगा। मुझे खुशी है कि हमारे BRO ने अटल सुरंग मार्ग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है
वो रोहतांग पास की टनल ये भी बनाई है, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर से कम हुई है और लेह और मनाली के बीच 4-5 घंटे का समय कम हो गया है। इस सुरंग मार्ग से मनाली और लेह के बीच के कारण इसका फायदा निश्चित रूप से हमारे कश्मीर के लिए, आगे लद्दाख लेह के लिए आगे होगा। आज 2022 में जो पूरे होने वाले कार्य है, जम्मू कारगिल और श्रीनगर लेह के बीच 2 नए हाईवे, भारतमाला परियोजना, और इसका भी हमने काफ़ी कुछ किया है। जम्मू कश्मीर में एनएच का विकास 2014 में केवल 1695 किलोमीटर था, कॉरिडोर। जम्मू के रिंग रोड का काफ़ी काम हुआ है, बीच में कार्यक्रम भी इसका हुआ। 2024 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर का लंबा जम्मू का 4 लेन रिंग रोड का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा होगा और हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। जितेंद्र सिंह जी को मैं विश्वास देना चाहता हूं। इसमें 34.30 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है, 9.60 किलोमीटर का काम मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा और 47.7 किलोमीटर का काम दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। 1480 मीटर के 2 ट्विन टनल इसमें है, जिसका निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। यहाँ भी 2 टनल बन रही है। बटोत, किश्तवाड़, सिंथेन टॉप, अनंतनाग का काम पूरा हो गया है। श्रीनगर, शोपिया, कांजीकुंड रोड का मजबूतीकरण का काम दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। 5100 करोड़ की लागत से जम्मू, अखनूर और अखनूर पुंछ तक का मार्ग बन रहा है। उसमें से जम्मू से अखनूर तक 26 किलोमीटर का काम 4 पैकेज में चल रहा है। जम्मू से खाटी चौक तक 22 किलोमीटर का काम अगस्त 2021 तक पूरा हो जाएगा। बाकी 4 किलोमीटर का काम के डीपीआर भी बनाए जा रहे हैं। अखनूर से पुंछ तक 167 किलोमीटर का काम 8 पैकेज में किया जा रहा है। पैकेज 1 से 3 तक 44 किलोमीटर काम स्वीकृत हो गया है और पैकेज 4 में 16 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। पैकेज 5 से 8 तक 106 किलोमीटर का डीपीआर फरवरी 2021 तक बन जाएगा और काजीकुंड से बनिहाल तक 2000 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। उधमपुर से चेनानी नासरी रामबन तक 2200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण काम मई 2021 में पूरा हो जाएगा। 2100 करोड़ की लागत से चेनानी सुध महादेव गोहा में काम हो रहा है। चेनानी सुध महादेव अक्टूबर 2021 में पूरा हो जाएगा। सुध महादेव गोहा सुरंग का टेंडर इसी माह में हो जाएगा। मोहा गिलानी का काम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, लेह के बीच 2 नए हाईवे की जो बात मैंने की थी, चेनानी से जोजिला तक 219 किलोमीटर नया मार्ग बनाया जा रहा है। कारगिल से पदम के बीच 176 किलोमीटर का नया मार्ग बनाया जा रहा है और चेनानी से जोजिला का नया मार्ग बनाने से जम्मू से श्रीनगर लेह जाने के 2 विकल्प हो जाएंगे। सर्दी के मौसम में सिंथन के पास ज़्यादा बर्फ गिरने के कई बार 1-2 दिन के लिए रास्ता बंद हो जाता है। इस मार्ग बनने से हर मौसम में आवागमन सुगम हो जाएगा और इस मार्ग के बनने से जम्मू से लेह जाने में 6 घंटे का समय बचेगा। यह मार्ग अनंतनाग से बालटाल होकर जोजिला तक बनेगा। इसमें श्रीनगर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जम्मू से लेह के लिए सीधा मार्ग हो जाएगा। इस बनने से अमरनाथ यात्रा करने वालों को लाभ होगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इस मार्ग के डीपीआर का टेंडर अक्टूबर में हो जाएगा। कारगिल पदम नया मार्ग है। कारगिल से पदम तक 236 किलोमीटर के मार्ग में 60 किलोमीटर पक्की सड़कें तथा उससे आगे कच्चा मार्ग है। वहाँ 800 करोड़ की लागत से 5.5 मीटर चौड़ी नई सड़क बनाई जा रही है। यह काम 4 पैकेज में किया जा रहा है। 30 किलोमीटर में 2 पैकेज का काम अवार्ड हो गया है। 80 किलोमीटर के 2 पैकेज का काम नवंबर तक अवार्ड हो जाएगा और 60 किलोमीटर का काम इस साल स्वीकृत हो जाएगा। सड़क निर्माण का काम 2023 तक निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। इस सड़क के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मनाली पहुंचना आसान हो जाएगा। भारतमाला योजना परियोजना में पर्यटक कनेक्टिविटी 105 किलोमीटर, लागत 2700 करोड़। ये भारतमाला परियोजना का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बारामूला, गुलमर्ग तथा 39 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क निर्माण का डीपीआर बन रहा है। इसके पहले बारामूला, गुलमर्ग तक 40 किलोमीटर सड़क मरम्मत का काम 2021 में पूरा कर लिया जाएगा।
बीआरओ के लिए भी हमने काम दिया है हमारे मिनिस्ट्री की ओर से। 19-20 में करीब 50 किलोमीटर के मार्ग निर्माण के लिए 1158 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है बीआरओ के लिए। अखनूर से रजौरी तक 44 किलोमीटर की टू लेन पेव शोल्डर के लिए 1065 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अखनूर से ददेशर तक 17 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर के लिए 272 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। और जवाहर सुरंग के रखरखाव के लिए करीब 94 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। 2020 में सड़क निर्माण कार्य के लिए 1351 करोड़ स्वीकृत करने का भी निर्णय किया है। और बीआरओ भी अभी अच्छा काम कर रही है। मैं बीआरओ के हरपाल सिंह जी को विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैं पहले बहुत नाराज रहता था, मेरी बहुत गालियां बीआरओ के लोगों ने खाई है, पर अब बीआरओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरपाल सिंह जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऑल सीजन रोड बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री का भी वो ठीक से कर रहे हैं। बीआरओ जो भी प्रस्ताव लाएंगे हम उतना पैसा देंगे और उनको मदद करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कटरा बस पोर्ट। कटरा रेलवे स्टेशन में नया बस पोर्ट 150 मीटर की दूरी पर बनेगा जो मेरे डिपार्टमेंट के अधीन है। 617 करोड़ की लागत से 32.5 एकड़ जमीन में ये बस पोर्ट बनने वाला है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है। दिसंबर तक डीपीआर बन जाएगा। बस पोर्ट बनने वाले व्यावसायिक दुकानों में 10 दुकानें स्थानीय एमएसएमई लोगों को दी जाएगी और अगस्त 2022 तक बस पोर्ट बन जाएगा। मैं हमारे दोनों एलजी साहब को, मनोज सिन्हा जी और माथुर जी को प्रार्थना करता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। अब बायो सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, इलेक्ट्रिक हमने लाया है। इलेक्ट्रिक की बाइक लाई, इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ लाई, इलेक्ट्रिक की बस लाई। और वो जम्मू कश्मीर में इतनी घटिया, बहुत ही गंदी बनाई हुई बसेस जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है और कभी कभी लोग टब पे भी बैठते, वो बसेस को रिप्लेस करने की योजना बनाओ। एयर कंडीशन, गर्मी भी मिल सकती है अंदर में, अच्छी कार तैयार करिए। टिकट रेट 25% कम हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक सस्ती है। अब सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। बायो सीएनजी हमने तैयार किया है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, इसकी स्कूटर्स लाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जम्मू कश्मीर जैसे सुंदर प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए आप नए फ्यूल का उपयोग करने के लिए आगे इनिशिएटिव लीजिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं पूरी मदद आपको करने के लिए तैयार हूं। और इसमें भी ये बहुत बड़ा बात होगा कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह का पर्यावरण अच्छा बने। डीजल के पोल्यूशन से उसको आप मुक्ति दीजिए। जम्मू श्रीनगर में ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए NHIDCL द्वारा जम्मू में 180 करोड़ की लागत से 3 कार पार्किंग भी हम बना रहे हैं। अभी हमने हमारे ऑफिस में दिल्ली में बनाया एक ऐसी 10 मंजिली बिल्डिंग बनाकर लिफ्ट में कार डालते हैं, ऊपर जाती है, तो ये पार्किंग हो जाएगा। क्लीननेस, अच्छे रेस्टोरेंट, हम भारत में स्वच्छता अभियान चला रहे प्रधानमंत्री जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्लीननेस रखिए, अच्छे ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइए, प्रदूषण करने वाला डीजल पेट्रोल खत्म करिए। और इसमें अभी आप कार पार्किंग करिए, रोड पर गाड़ियां खड़ी नहीं होगी। एक्सीडेंट को कम करिए, लोगों की जान बचाइए, ये भी हमने करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी ये जो NHIDCL जो आज काम कर रही है, ये नॉर्थ ब्लॉक रेलवे हेडक्वार्टर, साउथ ब्लॉक बाहू प्लाजा, एक्सचेंज रोड और NHIDCL जम्मू में भी ऐसे 3 कार पार्किंग बना रही है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी मैंने जिद्द करके लाई, पहला बनाया, और मुझे जितनी तकलीफ देनी थी सरकारी अधिकारियों ने उतनी 1.5 साल तक दी, तब मुझे मेरे ऑफिस में परमिशन मिली पार्लियामेंट के सामने और वो बना। अब वो टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो गई और पूरा इसका ये हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीनगर में 80 करोड़ की लागत से 4 पार्किंग बनाई जा रही है। पोलो व्यू पार्किंग, नेहरू पार्क पार्किंग, बाका मस्जिद, बटमालू पार्किंग, मीरक शाह टैक्सी स्टैंड, सभी कार पार्किंग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकल जाएगा। मैं लद्दाख और लेह में छोटी कंपनियों के लिए हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर के नियम बदल दिए। लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर का कॉन्ट्रैक्टर ही काम करे, इसलिए 50% रिलैक्सेशन दे दिया है। पर काम क्वालिटी का होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूं, पर आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी 1 रुपए देने के लिए मेरे पास और मेरे ऑफिस में मेरे सेक्रेटरी, राज्य मंत्री या किसी का आने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी कॉन्शियस, यही काम हमने किया है। और इसलिए छोटे लोग जो है लद्दाख, लेह के, इनको मैं सड़क पुल निर्माण में अक्सर बड़ी कंपनियां काम लेती है, उनको मैं काम देना चाहता हूं, उनको एडवांस देना चाहता हूं।
उनको मशवरे लेने के लिए कर्जा देना चाहता हूं। अलग राज्य बनने के बाद लद्दाख की छोटी कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माथुर साहब आप मीटिंग लीजिए और मेरे तरफ से क्या रिलैक्सेशन चाहिए बताइए। अच्छे काम करने वाले सब लद्दाख लेह से दीजिए, सब कामों में उनको प्रायोरिटी और रोजगार मिलेगा, ये भी आप देखिए। मैं भी मेगा इंजीनियरिंग को सूचना दूंगा कि सब कामों में स्थानिक लोगों को वो काम दे और वहाँ के लोगों को ही काम देना चाहिए। जे भी जॉइंट वेंचर कंपनी के नियम भी सरल बना दिए हैं, टेंडर क्षमता में कटौती करके आधा 50% नॉर्म रिलैक्स कर दिए। अब स्थानीय कंपनियां टेंडर लेकर आए, मैंने छोटे छोटे टेंडर निकालने के लिए भी कहा है और इसमें कोई भी अड़चन आती तो आप मॉनिटरिंग करिए। दोनों एलजी से मेरी प्रार्थना है और अड़चन आएगी तो मुझे बताइए। लद्दाख में 2000 करोड़ की लागत से 235 किलोमीटर का कारगिल झंस्कार मार्ग बनाया जा रहा है। अब इस मार्ग में भी 12 घंटे समय लगता है, ये बनने के बाद 7 से 8 घंटे का समय बचेगा। मैं इस मार्ग के निर्माण को 2024 तक पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस मार्ग में 8 पैकेज है और उसमें से 4 छोटे ब्रिज 2 पैकेज में काम हो रहा है। 2 पैकेज का काम दिसंबर में शुरू हो जाएगा और मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह अपप्रचार किया जा रहा था कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के लिए लद्दाख और लेह का विकास नहीं करेगी, पर आज मैं खुले रूप से आप सबको नम्रतापूर्वक ये बताना चाहूँगा कि पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो जम्मू कश्मीर को, लद्दाख, लेह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया और हम कोई पैसे की कमी नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। एमएसएमई भी मेरे पास है, आप जरूर आइए। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेह में हजारों नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम क्या मदद कर सके, वहाँ बनाई हुई चीज़ों का एक्सपोर्ट कैसे हो। मैंने बीच में आया था तो मैंने उस समय महबूबा मैडम थी तब उनको कहा था, मैं शिपिंग मंत्री था तब मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर को ड्राई पोर्ट देता हूँ, सैटेलाइट पोर्ट, ताकि वहीं से कंटेनर डायरेक्ट विदेशों में जाएंगे, वहीं से कस्टम फस्टम सब नियम वही हो जाएंगे। और आज जम्मू कश्मीर में अच्छी ऊल तैयार होती है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमा शाल बनती है, वो कितनी अच्छी है, पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इकोनॉमी को सुधारना चाहिए और जम्मू कश्मीर की, लद्दाख लेह की गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में काफ़ी काम वो भी कर रहे हैं। हमारे दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और माथुर साहब सामाजिक आर्थिक के साथ विकास के काम कर रहे हैं। भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लेह होगा। परिस्थितियाँ बदलेगी, गरीबी हटेगी, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और पर्यटन बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा सपना पूरा होगा। हम सब के मन में यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जीवन का सबसे प्रॉब्लमेटिक, कॉम्प्लिकेटेड 5-5 बार टेंडर निकाला हुआ, अनेक लोगों ने कुछ लोगों ने अटके ऐसे हैं कि सरकार में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, कुछ समस्याएं खड़े करने में ही होशियार होते हैं, कुछ लोग समस्या को सुलझाने में भी होशियार होते हैं। जो भी है सब हमारे हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, मैंने कभी डांटा भी होगा पर प्रेम किया, कॉन्फ्रेंस ली, एसोसिएम के साथ पब्लिक हियरिंग किए, सबके सुझाव लिए। धर्माधिकारी साहब, उनको मैंने मेरे साथ उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में टनल बनाई, कश्मीर में उन्होंने बहुत से टनल बनाए। अब रिटायर्ड है, उनका एज हो गया, बहुत बार वो मेरे भी एडवाइज़र है, उनको भी मैंने बार बार भेजा। जाना मुश्किल था, श्वास लेना मुश्किल था, अड़चने थी, पर मैं NHIDCL पाठक साहब, आपको और आपके इसके पहले जो ट्रांसफ़र हुए, रिटायर्ड हुए, उन सब अधिकारियों को और वर्तमान राजावत के साथ काम करने वाले हमारे सबके नाम तो लेना मुझे अभी एकदम याद नहीं है, पर उन छोटे छोटे लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग अगर मेहनत नहीं करते, आप इतना बदलाव नहीं करते तो 4000 करोड़ की बचत भी नहीं होती और इस काम का शुभारंभ नहीं होता। आखिर में मेगा इंजीनियरिंग को मेरा इतना ही कहना है और मेरा विश्वास है कि वो 3-4.5 साल में इस काम को पूरा करके दिखाएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। विश्व की, आशिया की सबसे बड़ी टनल, और ये टनल भी विश्व की जो
एक जिसमें 4,000 करोड़ की बचत हुई, यही केवल एक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये टनल 6 साल के बजाय 4 साल के अंदर पूरी हुई, ये भी रिकॉर्ड बनेगा। इसी विश्वास के साथ दोनों एलजी के साथ कमेटी की निर्माण होगा, वो तुरंत कमेटी निर्माण करें, दोनों को अधिकार में देता हूं। और हमारे एनएचआई के, एनएचआईडीसीएल के और मिनिस्ट्री के सभी अधिकारी आप उस कमेटी में उनको बुलाएंगे, तब आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, आप इसका रिव्यू करिए। प्रचार के लिए मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब आया था, और प्रचार के लिए भी आया था। तब मैंने वहाँ के लद्दाख लेह में, मेरी लेह में बहुत बड़ी सभा हुई थी, और उस सभा में रैली में करीब 15-20 हज़ार लोग थे, और मैंने आश्वासन दिया था कि ये जोजिला टनल में बनाऊंगा। अभी पुराने एमपी अब नहीं है, वो बेचारे बहुत भले और अच्छे आदमी थे, वो अभी नहीं है, पर उनके जिसमें नए एमपी है वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी इसके लिए बहुत मदद की है। वो दोनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, पुराने एमपी को और नए एमपी को। बेचारे लगातार पीछा करते रहे, उनको और उनके सब लद्दाख लेह की जनता को, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जनता को आज एक नई सौगात हमारी सरकार ने दी है। मैं फिर से उस जनता को बहुत बहुत अभिवादन करते हुए उनको शुभकामनाएं देता हूं, और विकास में हमारी सरकार आपके साथ रहेगी, यही वचन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और एमएसएमई के लिए दोनों एलजी के साथ बैठूंगा, रोजगार के निर्माण और पर्यटन के क्षेत्र में भी आपको जरूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर आपके संबोधन के लिए, और आपने जो सुझाव दिए हैं जिसमें टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप करना और प्रोजेक्ट को 4 साल में कंप्लीट करना, और लोकल रोजगार के जो सुझाव दिए हैं उस पर हम लोग अमल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा कंप्लीट हो जाए। अब कार्यक्रम हम की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। मैं अब श्री AK साहू, PWD सेक्रेटरी लद्दाख सर से अनुरोध करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें। Thank you. Good afternoon to all the dignitaries and the guests witnessing the today's historic event. On behalf of Ladakh administration, Jammu and Kashmir government, and people of both the Union territories, it is my extreme privilege to express my deep gratitude and thanks to Sri Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road Transport and Highways and MSME, Government of India, who has been the key person behind the Jojila project and removing the difficulties for its fresh start in lesser cost. Sir, without your key personal interest, it would not have been possible. Thank for your efforts and valuable time. We are also elated with the presence of Dr. Jiten Singh, Honorable Minister of State, Atomic Energy, Space, PMO, Personal, Public Grievances and Pension, who had been the forerunner in pushing this project at all forums and bringing it in the